A very warm good afternoon and welcome to our today's speaker, Professor Monica Dore, Madam, my seniors, colleagues, and dear students. I am Professor Ati Jain, Assistant Professor CSC Department, Sage University, Indore. We are here for 2 days workshop on cryptography in practice by Professor Monica, Assistant Professor in Dr. D.Y. Patil School of Engineering, Pune. This workshop will include introduction to cryptography, its needs, ancient and modern cryptography, its types, online demo for symmetry, ciphertext, symmetry key cipher, steganography, and its online demo, and most importantly, job opportunities in cryptography. During this workshop, I will like to give you brief about today's speaker. Professor Monica Dongre is presently working at Dr. D.Y. Patil School of Engineering, Lohegaon, Pune, as assistant professor in CSE department. She has total 13 years of teaching experience. She is also a founder member of her college and received an award for longest serving woman employee of institutions in 2018. She has handled many important portfolios like head of the department, departmental academic coordinator, student association coordinator, exam coordinator, and many more. He has many publications in individual and with her student category in reputed international journals. She is presently pursuing her PhD in wireless network security from Sage University, Indore. Her research area is security issues in mobile ad hoc networks. Cryptography is one of the most important security technologies. She would like to share her content with us on this topic. So before we move on to her session, I would like to request Professor Kush sir to play the Sage video.
Thank you, Kush sir. Now I request Monica ma'am to please start your session. Thank you, Ati ma'am. Thank you, Kush sir, and thank you everyone who invited me here. The video was very nice, by the way. Good afternoon, one and all. Good afternoon, students. Somebody can unmute and wish me the afternoon. Ma'am, actually, I have disabled that Acha. option. Okay, okay, not a problem. Because Okay. there will be lots of issues. Yes, sir. Yes, sir. So I'm starting my screen, sir. The student can write in chat box. Okay, okay, ma'am. Is it visible, ma'am? Yes. Okay. So a very good afternoon to all of you once again. I'm Professor Monica Dangure, and I'm doing my PhD here only at Sage University. So that way I'm your senior, guys. Okay, so let's start with the content now. The topic of the workshop is cryptography in practice. Uh, let's start with the term itself, the cryptography. What is mean by cryptography? You must have heard the word cryptography. See the definition. It is a technique of securing information through use of codes so that only the intended recipient can understand it. So basically, it's the technique of converting a readable information, a readable text into unreadable form, which cannot be identified. In terms of code, it converts the information. It's that technique. So it is a cryptographic technique. The cryptography word was a combination of two words, two Greek words. Crypto means hidden and graphic means writing. So it means it's about hidden writing. It's about secret writing. You can see the example on screen. We have a text called hello, and that gets converted into some text which is not identifiable easily. If you try to say it minutely, you can see that the word hello is reversed. So it becomes OLLEH. But at first glance, when you receive a word called Ole, you will not understand the meaning of it. So the basic word was hello. It was converted into a different form. It is in the form of a code which is sent to the recipient. If the recipient knows the logic, only he can understand the code. So it is a technique of converting a readable information into unreadable form. Okay, and it will be sent to a receiver, and if the receiver knows it, how to interpret it or how to break it or how to what is the logic behind it, he can understand. So the intention behind using this process is to secure the information. अगर हम कोड करके कोई टेक्स्ट भेजना चाहते हैं तो naturally we want that information to remain secure, and only the recipient which we want to send that information should understand it. So security is the reason behind this process. Security is the reason behind converting the information into coded form. What is the need of cryptography? You know, this is a modern era. Everything is computerized, and daily thousands and lakhs of people daily interact online through emails, ATM machines, e-commerce, cellular phones. So there is a lot of information being exchanged over the internet, and naturally, the people who are interacting, they want their information to remain secure. This is the reason behind use of cryptography. Basically, we have three security requirements: privacy and confidentiality. इसका मतलब जिससे हम मैसेज भेजना चाहते हैं सिर्फ वही उसे रीड कर पाए. मतलब we want our information to be confidential and private. Second requirement है integrity. Integrity का मतलब है intactness. मतलब जब वो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है और रिसीवर के पास जब वो गया, तब वो मैसेज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अल्टर नहीं हुआ. ये रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, कि वो मैसेज इंटीग्रेटेड रिसीवर के पास पहुंचा बिना अल्टर हुए ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन. तीसरी रिक्वायरमेंट है नॉन रेपुडिएशन. रेपुडिएशन का मतलब है डिनायल, नॉन डिनायल. इसका मतलब ये है कि आई एक्सेप्ट, सपोज आई एम द सेंडर, आई एक्सेप्ट दैट आई ओनली सेंड द मैसेज, आई एम द ओरिजिनल सेंडर ऑफ द मैसेज. मतलब मेरा नाम यूज करके कोई दूसरे ने ये मैसेज सेंड नहीं किया है, ये हम रिसीवर को एंश्योर करना चाहते हैं. तो ये जो सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट्स है, ये क्रिप्टोग्राफिक स्कीम्स के थ्रू अचीव होती है. सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी
public key or asymmetric key cryptography, and hash functions. So we'll be focusing on secret key cryptography and public key cryptography. So basically, cryptography provides information security for various purposes. It provides security against external and internal hackers, against industrial spying. It is used to secure e-commerce, securing bank transactions, securing intellectual property, threats to information security, online storage of sensitive information, insecure technologies, ट्रेंड टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी. तो इन सब के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्रिप्टोग्राफिक स्कीम्स का यूज करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल cryptographic concept now. Now, cryptography process has some terminologies: plain text, encryption, ciphertext, decryption, cipher, and key. These are the basic terminologies of cryptography process. See, you can see the diagram. Your plain text, your password is United Kingdom. This is the plain text. ये जो लिखा है यहाँ पे, your password is United Kingdom, ये हमें समझ में आ रहा है. It is an understandable form. Now, converting that information into unreadable form, this process is called as encryption. तो हमने इसे encrypt किया और वो एक coded form में convert हो गई है. यहाँ you can see in the ciphertext box. So this information which is not in identifiable form, this text is called as ciphertext. The converted text after encryption is called as ciphertext. Bringing back the ciphertext to normal form, to plain text, this process is called as decryption. तो डिक्रिप्शन से हमें ओरिजिनल टेक्स्ट रिट्राइव होगी. तो हमें फिर से यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट मिली, योर पासवर्ड इज यूनाइटेड किंगडम. Now, the algorithm which we are using for this encryption and decryption process, the algorithm is called as cipher. It is the mathematical function, or it is the algorithm which is doing the process of encryption and decryption. It is the cipher is the algorithm. Now, this cipher makes use of a secret value for encryption and decryption, and that secret value is called as a key. Okay, so these are the basic terms which you will be very clear with: plain text, encryption, ciphertext, decryption, cipher, and key. Plain text मतलब normal message, encryption मतलब उसको convert करना ciphertext में, ciphertext मतलब unreadable form उस text का, decryption मतलब उसको वापस normal form में convert करना, cipher मतलब algorithm जो हम logic use कर रहे हैं, और key मतलब जो secret value हम conversion process के लिए use करेंगे उसे कहते हैं key. We'll see a simple example of this process. Caesar cipher, we'll see. Caesar cipher is a very basic cipher. You can say that attack is the plain text. Okay, if we are using a logic of shifting every word, every letter by 2 positions to the right, तो A will become C, A, B, C. A को हमने 2 लेटर से शिफ्ट किया, C बना. T will become V, T will become V, A will become C, C will become E, K will become M. तो ये जो हमारा अटैक प्लेन टेक्स्ट था वो बना CVV CEM, ये उसका साइफर टेक्स्ट बना. तो यहाँ पे हमने लॉजिक क्या यूज किया है, साइफर टेक्स्ट लेटर कैसे बना, हमने प्लेन टेक्स्ट को यहाँ पे एनक्रिप्ट किया. और प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट कैसे किया, हमने हर एक प्लेन टेक्स्ट लेटर को 2 से बढ़ाया. सो दिस इज द लॉजिक यूज्ड बिहाइंड इट. ओके, तो यहाँ पे हमने 2 से शिफ्टिंग किया है, तो 2 बिकम्स की हियर, 2 is the key value. This is the encryption process. अब डिक्रिप्शन के लिए इसका हमको रिवर्स प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी. सो इनपुट टू डिक्रिप्शन प्रोसेस इज साइफर टेक्स्ट. तो हमने CVV CEM को यहाँ पे इनपुट दिया है और हर एक लेटर यहाँ पे -2 से शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें रिवर्स प्रोसेस कैरी करनी है. तो -2 से शिफ्ट करेंगे तो C बनेगा A, V बनेगा T, V बनेगा T, C बनेगा A, E, C, M, K. तो ये हुआ डिक्रिप्शन प्रोसेस. ओके, एनीबडी हैज एनी डाउट टिल दिस प्रोसेस? ओके, आई एम गोइंग अहेड. नेक्स्ट, नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट विल सी. We always have a curiosity of since when this started.
तो हम एक एंशियंट क्रिप्टोग्राफी का यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं. We'll not get into details of these ancient cryptographic tools. We'll just see how the tools used to look like. ओके उनका फंक्शनिंग अगर आपको पढ़ना है तो आप विकिपीडिया पे देख सकते हैं या फिर उसकी वीडियोस भी अवेलेबल है. तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि एंशियंट टाइम में क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस किस तरह से होती थी. Okay, so you can see this is a very old example, the first known evidence of cryptography. This kind of document, this is a document which you are seeing in the form of some this diagram, this paintings. This is a kind of document. So this is called as hieroglyph. तो 4000 साल पहले इजिप्शियंस जो थे उनके जो राजा होते थे उन राजा लोगों के जो लेट्स कॉल देम पीए पर्सनल असिस्टेंट्स होते थे उनको बोलते थे स्क्राइब्स. तो ये जो स्क्राइब्स होते थे वो उन राजाओं के डॉक्यूमेंट जो बनाते थे तो उसके लिए वो ये लोग ये कोडिंग स्कीम का यूज करते थे which was only understandable to some group of people. So the scribes used to make the documents of the kings using this coding technique. So this kind of document is called as hieroglyph. ये इजिप्शियन का है 4000 साल पहले का. Then we can see that skytel. A skytel we can say it's a cylinder. Excuse me guys, just a minute. Okay, so another example of ancient cryptography is a skytel. This skytel you can see it's a cylinder on which there is a thin material called as parchment, and this parchment is made up of animal skin. This parchment was being used as a writing material. उसके ऊपर एक कोडेड टेक्स्ट में मैसेज राइट करके उसके ऊपर रैप अप किया जाता था उस सिलेंडर के ऊपर, एंड दैट वाज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्काईटेल. तो यहाँ पे एंशियंट ग्रीक्स जो थे उनका जो मिलिट्री जो उनका सेटअप था वो इस तरह से इन स्काईटेल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता था. Then the third example is Alberti cipher disk. Now in 1467 Mr. Alberti he designed this cipher disk. There was a message and this message was being cracked against the wheels of this disk. So ये 1467 की बात है. ये substitution cipher का ये example था, ये Alberti cipher disk. देन 16th सेंचुरी में फ्रेंच साइफर मशीन इस तरह से मिस्टर हेनरी टू ये जो किंग थे वो इस तरह से साइफर डिवाइस 16th सेंचुरी में यूज करते थे. इट यूज्ड टू लुक लाइक अ बुक. उसके बाद है रोटर साइफर मशीन. ये जर्मनी में 1920s to 1970s के दरमियान ये रोटर साइफर मशीन इस डिवाइस का यूज किया गया क्रिप्टोग्राफी करने के लिए जर्मनी में. उसके बाद ये है एनिग्मा मशीन. एनिग्मा मशीन में यू कैन सी दैट ये जो रोटर मशीन है ये इस एनिग्मा मशीन के अंदर फिटेड है. तो ये मिड 20th सेंचुरी में ये नाजी जर्मनी ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 इस एनिग्मा मशीन का यूज किया था. तो आपने शायद देखा होगा एनिग्मा मशीन के ऊपर मूवी भी निकली है. उसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है कि कैसे काम करता है, किस तरह से वो डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करता है. तो दिस इज एन एनिग्मा मशीन यूज्ड बाय नाजी जर्मनी. Now these were the examples of ancient tools, ancient cryptographic tools. Now we'll see what are the latest applications of this cryptography in this modern computer era. Now today we are all surrounded by cryptographic applications, and we do not aware, we are not aware of it, that at so many places we see this word cryptography.
Now today's computer era, in today's computer era, the cryptographic function, the cryptography is made up of a high level mathematics. It involves a high level mathematics like information theory, computational complexity, statistics, probability theory, combinatorics, abstract algebra, number theory, finite mathematics. ये इन सारे हाई लेवल कंसेप्ट्स का यूज करके आज की क्रिप्टोग्राफी के जो फंक्शंस है और जो टूल्स है वो डिजाइन किए गए हैं. We'll see some daily life examples where cryptography is seen. You can see this is a WhatsApp application. Everybody uses WhatsApp, and you can see जब आप अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हो या करते हो तो जो चैट होता है आपका 1-to-1 चैट, उसमें आप इस तरह से विंडो देखते होंगे, वेरीफाई सिक्योरिटी कोड, या फिर द मैसेजेस एंड कॉल्स टू with this receiver are encrypted, end to end encrypted, ऐसा करके आप मैसेज देखते होंगे. तो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि whenever two people are communicating using this application, using this WhatsApp application, if a third person tries to intercept using his own software, मान लो वो आपका और आपका नंबर यूज करके आपका कॉल ट्रेस कर रहा है या आपका मैसेज ट्रेस कर रहा है, तो जो उसके पास मैसेजेस सेंड होंगे, अगर ये व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन फॉलो कर रहा है, तो जो इंट्रूडर को जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रहेंगे, ऐसा उसका मतलब है. देखो, तो ये जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है ये व्हाट्सएप का सिग्नल प्रोटोकॉल से डिजाइन है. सो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब एज अ यूजर हमें फर्क नहीं पड़ता है कि एन्क्रिप्शन है कि नहीं, बट व्हाट हैपेंस इफ सम सिक्योरिटी ब्रीच हैपेंस, if there is violation to security, if it happens, then in that case intruder के पास जो मैसेजेस जाएंगे वो encrypted फॉर्म में रहेंगे और वो उसे पढ़ नहीं पाएगा. पहले के केस में ऐसा नहीं होता था. जब वो व्हाट्सएप में ये सिक्योरिटी फीचर ऐड नहीं हुआ था, तो जो भी अगर ये आपका व्हाट्सएप चैट अगर कोई थर्ड पार्टी एक्सेस करती है तो उसे पूरा चैट, आपके पूरे कॉल के रिकॉर्ड्स, आपका सारा वीडियो कम्युनिकेशन पैकेट्स के फॉर्म में वो रिट्राइव कर सकते थे. प्लेन टेक्स्ट में उनको मैसेज मिलता था. लेकिन क्योंकि अभी ये व्हाट्सएप ने सिक्योरिटी फीचर ऐड किया है और आपका फोन अपडेटेड है और आपके फोन में अगर एन्क्रिप्शन अवेलेबल है तो आपके चैट्स और आपके कॉल्स सिक्योर रहेंगे. एन्क्रिप्शन इन जीमेल, आप ये देखिए एक ईमेल का ये हेडर है, यहाँ पे सिक्योरिटी करके टाइटल आया है, वहाँ पे एक लॉक का सिंबल है, स्टैंडर्ड एन्क्रिप्शन TLS. यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि जीमेल किस टाइप की सिक्योरिटी का यूज कर रहा है. इट्स TLS सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी. इसका मतलब क्या हम देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है. तो जीमेल इज यूजिंग ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी टू सेव मेल्स, टू सिक्योर मेल्स. ये है कैनरा बैंक का वेबसाइट. नाउ यू कैन सी दैट दीज डेज एवरी वेबसाइट इज HTTPS, उसके सामने टैग लगा होता है HTTPS. अर्लियर वेबसाइट्स वे HTTP, तो वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाली वेबसाइट थी. HTTP प्रोटोकॉल उन वेबसाइट्स के लिए फॉलो होता था. नाउ दिस इज HTTPS मींस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वर्जन इसमें ऐड हुआ है. तो ये जो HTTP प्रोटोकॉल है ये सिक्योर बना है. इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक वेबसाइट है, मान लो जीमेल है, जहाँ पे हम हमारा यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं और इस वेबसाइट को सिक्योर नहीं किया गया है. तो प्रोटोकॉल विच इज फॉलोइंग इज HTTP प्रोटोकॉल, द वेबसाइट इज नॉट एन्क्रिप्टेड. तो क्या होगा, अगर कोई थर्ड पार्टी किसी टूल का यूज करके आपका यूजर नेम और पासवर्ड कैप्चर करने की कोशिश करती है तो उसे वो प्लेन टेक्स्ट में मिलेगा. इसका मतलब क्या है, मान लो आप अपने कंप्यूटर पर बैठे हैं और आपने जीमेल ओपन किया, ये वाला जो बॉक्स देख रहे हैं मान लो ये जीमेल का है, आपने आपका यूजर नेम डाला है anjbhagwani@gmail.com और पासवर्ड डाला है और लॉगिन किया. तो क्या होता है, HTTP प्रोटोकॉल एक्सेस होता है, उसका जो पोस्ट मेथड है वो इन्वोक होता है और उस पोस्ट मेथड को आपका यूजर और पासवर्ड सेंड होता है और वो जीमेल के सर्वर पे जाता है. अगर इस टाइम पे आपका लैपटॉप कोई ट्रैक कर रहा है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज करके, मान लो उसने ये वायरशार्क टूल यूज किया है, ये वायरशार्क टूल है,
तो मान लो सुंटरडर ने वायरशार्क टूल यूज किया है और आपका सिस्टम स्कैन हो रहा है, तो जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी पैकेट्स के फॉर्म में आपको इस वायरशार्क टूल में दिखाई देगी। तो मान लो आपने काम ऑलरेडी किया है, यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी एंटर किया है या फिर अभी कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प है, इस टाइम स्टैम्प पे एक्टिविटी हुई है। सोर्स मतलब ये जो आपको दिख रहा है 192.168.121.128, ये आपका आईपी एड्रेस है, सोर्स का आईपी एड्रेस आपके मशीन का एड्रेस है। और डेस्टिनेशन मान लो ये जीमेल का आईपी एड्रेस है 176.28.50.165, उसको आप उस वेबसाइट को एक्सेस करके आप यूजर नेम पासवर्ड आपका एंटर कर रहे हो, तो वहां पे HTTP प्रोटोकॉल ऑफर हो रहा है। और यहाँ पे देखो पोस्ट मेथड इन्वोक हुई है। अगर उस पैकेट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो उस पैकेट का सारा डेटा आपको नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया। ये जो वेबसाइट थी वो एन्क्रिप्टेड नहीं थी, ये HTTP प्रोटोकॉल था, HTTPS प्रोटोकॉल नहीं था। तो क्योंकि ये HTTP प्रोटोकॉल था, ये सिक्योर नहीं था, तो सारा जो डेटा आपने भेजा वो पैकेट्स में क्लियर टेक्स्ट में दिख रहा है। देखो उस पैकेट के ऊपर क्लिक किया, मैं इंट्रूडर हूँ, मैंने आपके पैकेट के ऊपर क्लिक किया और मुझे दिखा कि यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, तो मैंने आपका यूजर नेम पासवर्ड हैक कर लिया। इस तरह से होता है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन योर वेबसाइट इज एन्क्रिप्टेड, तो जो पैकेट्स है वो पैकेट्स एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ही दिखते हैं। जैसे कि फिर से आपने लॉगिन किया है और कोई आपका सिस्टम एक्सेस कर रहा है यूजिंग वायरशार्क टूल और उसने इस पैकेट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो हाईलाइटेड लाइन है डार्क ब्लू कलर में, ये SSH इस प्रोटोकॉल से ये एन्क्रिप्टेड है। तो जब आप इसके ऊपर इसको ओपन करने की कोशिश करोगे, फॉलो TCP/ST में आपको दिख रहा होगा, इसको ओपन करने की कोशिश करोगे तो आपको एन्क्रिप्टेड फॉर्म दिखाई देगा। पहले की तरह क्लियर फॉर्म में आपको कोई भी टेक्स्ट नहीं मिलेगी क्योंकि ये वेबसाइट अभी सिक्योर है। नेक्स्ट वेरी कॉमन एग्जांपल ATM सिस्टम। ATM के जो कार्ड्स होते हैं उन्हें हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल इंक्रिप्शन से सिक्योर किया जाता है ताकि कोई हैकर आपका पिन इंटरसेप्ट ना कर सके। दे यूज हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल इंक्रिप्शन। देन दिस इज अ Zoom सिक्योरिटी, Zoom एप्लीकेशन। आप देख रहे होंगे ये हमारा PhD का क्लास है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके फैमिलियर फेसेस दिखाई देंगे। ये कुश सर है, ये अति मैम है, ये मैं हूँ, राजेश सर है। तो ये हमारा PhD का क्लास है। ये हमने यहाँ पे Zoom एप्लीकेशन का यूज किया है। तो ये Zoom एप्लीकेशन भी TLS और AES से एन्क्रिप्टेड होता है, इन दोनों प्रोटोकॉल से एन्क्रिप्टेड होता है। मतलब अगर कोई तीसरा इसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उससे कोई भी डेटा, कोई भी कंटेंट शेयरिंग, फाइल PPT शेयरिंग या कोई भी कम्युनिकेशन उसको क्लियर टेक्स्ट में दिखाई नहीं देगा। सो इस तरह से सारे एप्लीकेशंस प्रोटेक्टेड होते हैं यूजिंग एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी। Before going ahead, I would like to hear some response from you. Are you understanding or not? Because I'm thinking as if I'm going one way. तो कुछ अगर रिस्पॉन्स मिले तो मुझे अच्छा रहेगा। Are you understanding? Somebody please unmute. Ma'am, students are responding through chat box. Okay. So you can. Everyone is saying yes, we are understanding. Okay. सर आप पूछिए, आपको किसी को कुछ डाउट पूछना है क्या? Somebody please ask some doubt so that I can understand that it is going, Okay. it is reaching to you. Okay. Dear Anybody students, has if any you have doubt, any guys? doubts, then please write on chat box. I'll ask on behalf of you. हाँ, तो ये जो हमने अभी तक एग्जांपल्स देखे हैं उसमें कुछ आपको डाउट है क्या, कुछ नहीं समझा है? आपको बेसिक डिटेल्स तो हम देखेंगे बाद में, लेकिन ये नॉर्मल डेली लाइफ एप्लीकेशंस है, आपको समझे है क्या? या फिर अभी तक तो सभी ने yes लिखा है. Okay sir, we'll go ahead then. At the end we'll take queries from everybody. Sure. Okay sir. Okay, we'll go ahead. Now see, it has three types. Cryptography process has three types: symmetric key, asymmetric key और hash function. अब symmetric की जो क्रिप्टोग्राफी होती है उसमें क्या होता है, एक ही की का यूज होता है एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए सिमेट्रिक की में। असिमेट्रिक की में दो कीज का यूज होता है, एक की से एन्क्रिप्शन होता है, दूसरे की से डिक्रिप्शन होता है।
और हैश फंक्शन वी आर नॉट यूजिंग हैश फंक्शन, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको उसका टच दे देती हूँ। हैश फंक्शन कैसे यूज होता है, मान लो हमने अपना यूजर आईडी पासवर्ड एंटर किया है जीमेल का फॉर एग्जांपल, तो जीमेल के सर्वर पे जो हमारा पासवर्ड है वो हैश फंक्शन से वो एक कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और सारी उसकी हैश्ड वैल्यू स्टोर होती है, वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, जैसे 10 ये हमारे पास एक हैश्ड वैल्यू है 10 ये वैल्यू अगर 3-4 वैल्यूज से बनी हुई है, मान लो 10 का से 5 + 5 हो सकता है 10, या फिर 1 + 7 + 2 भी होता है 10, तो 172 के लिए एक वैल्यू 10, तो इंस्टेड ऑफ सपोज 172 ये हमारा पासवर्ड है, तो 172 सेव ना होते हुए वो पासवर्ड 10 बन के सेव होगा सर्वर पे, उसकी हैश वैल्यू स्टोर होती है। ओके, तो ये हैश वैल्यूज हम फिलहाल नहीं देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन और असिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन। सिमेट्रिक की में एक ही की यूज होती है। देखिए अगेन सिंपल एग्जांपल ऑफ साइफर, जो बेसिक साइफर है, यहाँ पे हमने सीजर साइफर यूज किया है। यू कैन सी द प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट ABCDEFG, ये सीक्वेंस है Z तक। अगर हमने यहाँ पे शिफ्ट की यूज की है 3, तो हर एक लेटर 3 से शिफ्ट होगा, तो A बनेगा D, B बनेगा E, C बनेगा F, इस तरह से ये शिफ्टिंग होगा। अगर हमारे पास ट्यूटोरियल ये प्लेन टेक्स्ट है तो T बनेगा W। देखिए आप प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट में T को लोकेट कीजिए, T कहाँ पे है, T यहाँ पे है, तो उसका बना W। फिर U कहाँ पे है, U यहाँ पे है, उसका बना X। इस तरह से ट्यूटोरियल का कन्वर्जन होगा इस साइफर टेक्स्ट में WX WRULDO, इस तरह से उसका कन्वर्जन होगा। अभी ये हुआ इंक्रिप्शन, अभी डिक्रिप्शन करना है तो हमें वही प्रोसेस रिवर्स वे में फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे साइफर टेक्स्ट हमारा इनपुट होगा डिक्रिप्शन प्रोसेस में, और हम -3 से उसे शिफ्ट करते जाएंगे, -3 से। सो W, अगर हम साइफर टेक्स्ट में सर्च करें W कहाँ पे है, W को -3 से शिफ्ट करें तो बनेगा T, X बनेगा U, इस तरह से हमें अपना जो प्लेन टेक्स्ट है वो रिट्राइव होगा विद द शिफ्ट ऑफ -3। दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ अ सीजर साइफर, जो हमने पहले भी देखा है। अब सीजर साइफर वाज वेरी इजी टू ब्रेक, सो केम सब्स्टिट्यूशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर में क्या होता है, देयर आर 26 लेटर्स। अब इस 26 लेटर्स स्टैंडर्ड सीक्वेंस इज ABCDEF up to Z. Now we will jumble up these letters and we will create a new random sequence. तो अगर हम इन 26 लेटर्स का नया रैंडम सीक्वेंस बना के गए तो हमें ऐसे कितने सीक्वेंसेस मिलेंगे, 26 फैक्टोरियल, मतलब 26 into 25 into 24 up to 1, तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ सीक्वेंसेस हमें मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड हमारा सीक्वेंस है A to Z, उसको एक रैंडम सीक्वेंस से मैप करेंगे। रैंडम सीक्वेंस हम ही डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि ABCDEFGH के लिए मुझे ये सीक्वेंस लेना है, एक लेटर एक ही बार ऑफर होगा। ओके, KDGFNSLVB up to U, इस तरह से हमने एक रैंडम सीक्वेंस डिसाइड किया। तो इस स्टैंडर्ड सीक्वेंस के साथ ये रैंडम सीक्वेंस मैप होगा और फिर करस्पॉन्डिंग लेटर्स रिप्लेस होंगे। पॉइंट अगर हमें एन्क्रिप्ट करना है तो पॉइंट को हम यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में लोकेट करेंगे P। अब P को मैप हो रहा है M, तो P बनेगा M। जहां पे भी P आएगा प्लेन टेक्स्ट में, जितनी बार भी आएगा वो P M से रिप्लेस होगा। उसके बाद है O को लोकेट करेंगे प्लेन टेक्स्ट में, O है यहाँ पे, O का करस्पॉन्डिंग साइफर लेटर मिला हमें J। उसके बाद I को लोकेट करेंगे प्लेन टेक्स्ट में, I का करस्पॉन्डिंग लेटर मिला हमें B, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, एक रैंडम सीक्वेंस क्रिएट करेंगे और रैंडम सीक्वेंस को स्टैंडर्ड सीक्वेंस के साथ मैप करेंगे और फिर एन्क्रिप्शन करेंगे। तो कोई भी वर्ड जो हमें एन्क्रिप्ट करना है वो हम उस साइफर टेक्स्ट सीक्वेंस के साथ मैच करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस हमने डिजाइन किया है ये हो गया सब्स्टिट्यूशन साइफर का की। ओके, अब मान लो हमारे पास ये जो लेटर है, ये जो साइफर टेक्स्ट वर्ड है MJBXZ, उसको हमको वापस रिट्राइव करना है प्लेन टेक्स्ट में। तो हम क्या करेंगे,
साइफर टेक्स्ट सीक्वेंस में जाएंगे, एम को देखेंगे, एम कहाँ पे है, एम को प्लेन टेक्स्ट के साथ मैच करेंगे तो हमें मिला पी। फिर जे, जे कहाँ पे देखेंगे साइफर टेक्स्ट में, जे यहाँ पे है, उसको प्लेन टेक्स्ट के साथ मैच करेंगे तो मिलेगा ओ। इस तरह से हम अपनी जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो रिट्राइव करेंगे। ये है सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर। अब क्या होता था कि ये जो बेसिक साइफर्स है दे वेर इजी टू ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हर एक लेटर जो अभी तक हमने देखा, हर एक लेटर का एक ही रिप्लेसमेंट होता है, फिक्स रिप्लेसमेंट। मान लो यहाँ पे ट्यूटोरियल है, यहाँ पे टी का डब्ल्यू में कन्वर्जन हुआ है, फिर से जब तीसरी बार टी आया, जब दूसरी बार टी आया तो फिर से डब्ल्यू ही मिला है। तो हर एक लेटर का एक फिक्स्ड कन्वर्जन लेटर हमें मिलता है। तो इससे क्या होता है, इफ यू ट्राई टू एनालाइज द साइफर टेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अगर हम उसका करते हैं तो हम ये ग्रास्प कर पाते हैं कि ओरिजिनल वर्ड्स क्या हो सकते हैं, या फिर कौन सा साइफर यहाँ पे यूज किया जा सकता है या यूज किया गया है। ये हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से हम ये समझ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक लेटर का एक ही रिप्लेसमेंट था, फिक्स रिप्लेसमेंट, इस वजह से इसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस इजी था। तो क्या किया गया, फिर साइंटिस्ट ने एक नेक्स्ट इसका इंक्रीमेंटेड वर्जन लॉन्च किया, पॉली अल्फाबेटिक साइफर। इसमें क्या होता था कि एक लेटर का मल्टीपल रिप्लेसमेंट होता था। मतलब ए कभी मान लो टी बन रहा है, कभी यू बन रहा है, कभी ओ बन रहा है, कभी सी बन रहा है। तो ए ये लेटर एक स्टेटमेंट में जितनी बार भी आ रहा है उतनी सारे बार उसका जो रिप्लेसमेंट है वो अलग अलग बन रहा है, वो सेम नहीं बन रहा है। तो इसे कहते हैं पॉली अल्फाबेटिक साइफर। मतलब एक लेटर का मल्टीपल लेटर से रिप्लेसमेंट हो रहा है साइफर टेक्स्ट में, ऐसा उसका मतलब है। ओके, तो एग्जांपल है उसके नॉन पॉपुलर एग्जांपल्स प्लेफेयर एंड विजेंद्र साइफर। तो हम एक विजेंद्र साइफर का एग्जांपल देखेंगे। इसमें आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप थोड़ा ये ध्यान से देखो, और आई वुड लाइक समबडी टू आंसर इन चैट्स। विजेंद्र साइफर का हम एग्जांपल देखेंगे जहां पे हर एक लेटर का नया नया रिप्लेसमेंट हमें मिल रहा है साइफर टेक्स्ट में। ये this cipher makes use of a Vigendry table. You can see that along a row these 26 letters are written A to Z along a row, and along column also these A to Z letters are written. अब आप देखिए row number A is starting with letter A and it is continuing up to Z. Then row number B is starting with letter B and continuing up to Z followed by A. ये ए कहां से आया, यहाँ पे जो लेटर्स होते हैं वो साइक्लिकली लेफ्ट शिफ्ट होते हैं। इसका मतलब जब बी का रो बना तो ए शिफ्ट हुआ और बी, मान लो ये इट्स अ क्यू, मान लो ये क्यू है, तो पहला वाला लेटर शिफ्ट होके पीछे से क्यू में आके ज्वाइन हो गया इस तरह से। तो ए वाली रो तो ए से स्टार्ट होगी, बी वाली रो में ए शिफ्ट होके पीछे से आ गया क्यू में, तो ये बी टू ए सीक्वेंस बना। फिर सी वाला सी डी ई एफ जी, पहले ए गया पीछे से, फिर बी गया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ए और बी एंड में ऐड हुए हैं। उसके बाद डी से स्टार्ट हुई जो रो है, डी ई एफ जी से ये चालू हो गया और पहले ए घुसा क्यू में, फिर बी आया, फिर सी आया। तो ये इस तरह से ये टेबल बना हुआ है। अब देखिए लास्ट में जेड से स्टार्ट हुआ और ए आया पीछे से लेफ्ट रोटेट होके, फिर बी आया, फिर सी आया, इस तरह से लास्ट में वाई आया। तो ये इस तरह से ये विजेंद्री टेबल का इस साइफर में यूज होता है। ये 26x26 का मैट्रिक्स है। अब इसमें अगर मान लो ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, अटैक एट डाउन, हमें यहाँ पे की यूज करनी पड़ेगी। मान लो हमने की यूज की है लेमन, तो इस लेमन की को हमें प्लेन टेक्स्ट के लेंथ तक रिपीट करना पड़ेगा अगर वो की छोटी है तो। अगर अटैक एट डाउन इतने लेंथ की अगर हमने की ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर की छोटी है तो हमें उस प्लेन टेक्स्ट के लेंथ तक उसे रिपीट करना पड़ेगा। तो ये अटैक एट डाउन यहाँ पे हमारा प्लेन टेक्स्ट लिखा है और लेमन की यहाँ पे रिपीट हुई है, लेमन लेमन एल ई यहाँ पे खत्म हुआ।
अब इसका कन्वर्जन कैसे करना है? ये की है लेमन, हमें इस की का रो कंसिडर करना है, की लेटर का रो कंसिडर करना है और प्लेन टेक्स्ट लेटर का कॉलम कंसिडर करना है और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है। वो बनेगा उस पर्टिकुलर प्लेन टेक्स्ट लेटर के लिए साइफर टेक्स्ट लेटर। फिर से एक बार, हमने प्लेन टेक्स्ट लेटर, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट लेटर्स लिखे हैं अटैक एट डाउन, वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे, ये प्लेन टेक्स्ट लेटर्स कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो की का सीक्वेंस है लेमन लेमन एली, ये लेटर्स रो को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अगर हमें ए के लिए करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट लेटर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? एल नंबर का रो और ए नंबर का कॉलम, उनका इंटरसेक्शन क्या है वो देखना पड़ेगा। अभी देखो, एल नंबर का रो है यहाँ पे और ए नंबर का कॉलम है यहाँ पे, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है एल। ओके, तो ए रिप्लेस होगा एल से। वैसे ही ई नंबर के रो में टी नंबर का कॉलम हमें ढूंढना है, ई नंबर के रो में टी नंबर का कॉलम, यहाँ पे टी नंबर का कॉलम देखो, ई नंबर के रो में टी नंबर का कॉलम आया है एक्स, तो ये जो टी है ये एक्स से रिप्लेस होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो प्लेन टेक्स्ट लेटर है ना, उनके लिए रिप्लेसमेंट देख रहे हैं। रिप्लेसमेंट हमें कैसे मिल रहा है? हम ये की का रो देख रहे हैं और प्लेन टेक्स्ट का कॉलम देख रहे हैं, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन लेटर हमें मिल रहा है वो उस प्लेन टेक्स्ट लेटर का साइफर टेक्स्ट लेटर हो रहा है। फिर से अब थर्ड वाला देखते हैं, एम नंबर का रो और टी नंबर का कॉलम, एम नंबर का रो और टी नंबर का कॉलम, एम नंबर का रो और टी नंबर का कॉलम कहा गया ये, तो ये हुआ एफ, तो यहाँ पे ये वाला टी बना एफ। फिर से ओ नंबर का रो और ए नंबर का कॉलम, ओ नंबर का रो और ए नंबर का कॉलम, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आया ओ। इस तरह से हम कन्वर्ट करते जाएंगे। अब आप देखिए, ए का यहाँ पे एल बना है, दूसरी जगह पे जब ए आया तो उसका ओ बना है, तीसरी जगह पे जब ए आया तो उसका ई बना है, चौथी जगह पे जब ए आया तो उसका एन बना है। तो ये हर बार एक नया नया रिप्लेसमेंट हमें उस लेटर के लिए मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज पॉली अल्फाबेटिक साइफर। मोनो अल्फाबेटिक में क्या होता है, जैसे हमने सीजन में देखा, जहां पे भी ए आया वो फिक्स लेटर से, एक ही लेटर से रिप्लेस हुआ, लेकिन यहाँ पे जो लेटर आ रहा है वो हर बार अपने नए ऑकरेंस में नए लेटर से रिप्लेस हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज पॉली अल्फाबेटिक साइफर। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस यूज करके उस कोड को ब्रेक करना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी somebody should आंसर कि ये तो हुआ एन्क्रिप्शन प्रोसेस, इसमें हमने क्या किया कि की नंबर के रो में, की लेटर के रो में हमने प्लेन टेक्स्ट लेटर का कॉलम सिलेक्ट किया और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमने लिया। प्लेन टेक्स्ट लेटर रेफर्स टू कॉलम एंड की रेफर्स टू रो, ऐसा ध्यान में रखो, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस प्रोसेस में डिक्रिप्शन कैसे होगा? मान लो हमें लेमन ये की पता है और साइफर टेक्स्ट पता है, साइफर टेक्स्ट हमारी ये आई है LXFOPVEFRNHR, ये हमारी साइफर टेक्स्ट आई है, और मान लो हमें ये पता है कि लेमन की है समहाउ, तो प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे रिट्राइव कैसे होगी? Anybody is able to answer? You can write on chat box. एक मेन लॉजिक ध्यान में रखो कि हमें प्लेन टेक्स्ट कॉलम्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट के जो अल्फाबेट्स है वो कॉलम के लिए यूज कर रहे हैं, और रो के अल्फाबेट्स हम की से ले रहे हैं, मतलब की के अल्फाबेट्स के लिए हम रो यूज कर रहे हैं, की रो कॉलम प्लेन टेक्स्ट, ये बात ध्यान में रखो। तो अगर आपको की पता है तो प्लेन टेक्स्ट कैसे डिराइव कर सकते हो? ओके, देखिए यहाँ पे कैसे होगा, ये जो साइफर टेक्स्ट के लेटर्स हमें मिले हैं ये इस बॉक्स में से मिले हैं, ये इस मैट्रिक्स में से मिले हैं,
और हमें ये पता है कि हमें की से रो मिलेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे ये साइफर टेक्स्ट लेटर है L, इसको L नंबर के रो में लोकेट करेंगे। L नंबर का रो है यहाँ पे हम L को लोकेट करेंगे। ये सारे यूनिक है, यहाँ पे रिपीटेशन कुछ भी नहीं है। तो L यहाँ पे लोकेट हो गया L नंबर के रो में, उसका करस्पॉन्डिंग अगर हम कॉलम देखें तो हमें मिल रहा है A। तो L डिक्रिप्ट हो गया A में, L का हमें डिक्रिप्शन मिला A। वैसे ही हम X को लोकेट करेंगे E नंबर के रो में। E नंबर का रो कहाँ पे है, यहाँ पे है, उसमें हम X को लोकेट करते हैं। X कहाँ गया, यहाँ पे है, उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम क्या आ रहा है, T। तो इस तरह से हमें X का डिक्रिप्शन मिला T में। फिर हम देखेंगे कि M के रो में, M वाले रो में F कहाँ पे है, M वाले रो में F कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम क्या है, T। तो इस तरह से हमें प्लेन टेक्स्ट लेटर मिला T। फिर हम देखेंगे कि O वाले रो में O को हमें लोकेट करना है। O वाले रो में हम O को लोकेट करेंगे, करस्पॉन्डिंग कॉलम क्या मिला, A। इस तरह से हमें ये जो प्लेन टेक्स्ट है ये हमें रिट्राइव बैक हम कर पाएंगे। This was the example of Vision cipher. This was till some point of time it was the most secure cipher, लेकिन ये भी ब्रेक हुआ है। Okay. Now these ciphers are no longer being used because they all have been broken. हमारे लिए डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये सारा इसके पहले काम हो चुका है, इसके ऊपर क्रिप्टोनालिसिस हो चुका है। तो these days for most of the applications, if we are using symmetric key encryption, so we use AES algorithm, DS algorithm। ये algorithms applications में यूज होते हैं, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन हुआ, मेडिकल एप्लीकेशंस, ये बड़े बड़े एप्लीकेशंस में अगर हम सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो AES, DS एल्गोरिथम्स यूज होते हैं। बट नॉर्मली वी यूज पब्लिक की एन्क्रिप्शन, asymmetric key encryption we use, and there we use RS algorithm, ECC algorithm, those algorithms we use mostly। तो ये था एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक की साइफर। हमने 3 एग्जांपल्स देखे। अभी आपको अगर इसके साथ कुछ फन करना है, इफ यू वांट टू डू सम फन विद इट बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग एंड श्योरली यू वांट टू डू समथिंग विद इट, तो ऑनलाइन टूल्स का यूज कर सकते हैं एट स्टूडेंट लेवल। बेसिकली देयर आर स्टैंडर्ड टूल्स अवेलेबल, सम ऑफ देम आर फ्रीली अवेलेबल। Organizations, security organizations have their own tool for developing ciphers for cryptanalysis। क्रिप्टोनालिसिस का मतलब होता है कोड को ब्रेक करना बिना उसकी की जाने। ओके, जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ खजाना है, खजाने को हम लॉक करके रख रहे हैं, दैट मींस हमने उसको एन्क्रिप्शन अप्लाई किया। वी हैव अ की, द ऑथराइज्ड पर्सन हैज अ की, सो थ्रू की ही विल ओपन द लॉक, वो डिक्रिप्ट कर सकता है। बट देयर इज अ चोर डज नॉट हैव अ की, बट स्टिल इट कैन ओपन द लॉक यूजिंग सम मेथोडोलॉजी। तो वो बिना की का यूज किए जब लॉक तोड़ता है उसे कहते हैं क्रिप्टोनालिसिस। आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, एक कोड सडनली आ जाता है अथॉरिटी के पास और दे नीड टू ब्रेक इट अर्जेंटली, तो वो ट्रायल एंड एरर करते हैं। इसका मतलब क्या करते हैं, उनके पास की नहीं होता है उसका, तो वो क्रिप्टोनालिसिस परफॉर्म करते हैं आइदर थ्रू लीगल और इलीगल वे। हैकर्स अगर होंगे तो इलीगल तरीके से क्रिप्टोनालिसिस यूज करेंगे, अदरवाइज एथिकल हैकर होंगे तो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू करेंगे। तो क्रिप्टोनालिसिस का मतलब क्या है, कोड को ब्रेक करना बिना उसकी की जाने। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स है जो हम एक नॉर्मल यूजर को हमें मिलेंगे, जैसे कि ये cryptool.org की वेबसाइट है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। ये क्रिप्टूल एक फ्री, उसी का एक डाउनलोडेड वर्जन अगर हम इस टूल को यूज करें तो यहाँ पे आपको ये एक समझ में आएगा कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट दिख रही है ये एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट है और इसका क्रिप्टोनालिसिस करने की कोशिश की जा रही है कि ये टेक्स्ट क्या है, ये इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सो दे आर मेकिंग क्रिप्टोनालिसिस, मेकिंग यूज ऑफ क्रिप्टोनालिसिस। यहाँ पे एनालिसिस में सबसे पहले उनको ये गेस करना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप का साइफर हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है,
they will go for Caesar, Visionary, but ये ऐसे brute force, they cannot use brute force technique, मतलब बिल्कुल line by line एक एक option को try करना, they cannot afford this because it can take billions of years to crack them. If we go line by line, if we go sequentially, if we are trying to find out all the possibilities, इस case में इसको बोलते हैं finding all possibilities, इसको बोलते हैं brute force approach. If they go by brute force approach, then it will take billions of years to crack it, billions. So there are some intelligent techniques for selection of the cipher to break. जैसे अभी हमारे पास ये टेक्स्ट आ गई है, तो ये टेक्स्ट को, ये जो एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट है, इसको एन्क्रिप्ट किस साइफर के थ्रू किया गया होगा, इसका जो गेस है, ये इसके पीछे भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं ये जानने के लिए भी, कि गेस करने के लिए कि ये कौन से टाइप का साइफर हो सकता है, गेस कैन बी रॉन्ग. तो उसके लिए भी ग्राफिकल मेथड से, वो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं. तो मान लो हमने समहाउ हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये सीजर साइफर से हुआ है. अगर सीजर साइफर हमको पता भी चल गया तो भी की क्या है, दैट इज अनदर थिंग. की क्या है, की के लिए भी हमें बहुत सारा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा. तो इस तरह से अभी अगेन दे फॉलो सम इंटेलिजेंट टेक्निक टू फॉर दिस गेस वर्क. उनके पास इसके लिए टूल्स होते हैं, maybe with the ethical hackers and unethical hackers also. So through these tools they try to do cryptanalysis, they try to break this code. अभी ये एक और है, यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्लाई हुआ है AES एल्गोरिथम का. बैक आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में जो बैक साइड का जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट है और ये हेक्साडेसिमल की वो गेस कर रहे हैं. सम पोर्शन, ये 128 बिट्स का की है, वो कुछ पोर्शन उसका गेस कर रहे हैं और फिर वो देखेंगे कि ये गेस वर्क कितना काम में आता है. तो नीचे टाइम भी लिख कर आता है कि अगर आपने ये गेस को लेकर हम चले और इस सीक्वेंस से स्टार्ट होने वाली भी मल्टीपल कीज होंगी, तो अगर वो हम की स्टार्ट करते जाए तो उसको ब्रेक करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो टाइम भी नीचे लिख कर आता है. तो इस तरह से देयर आर टेक्निक्स फॉर क्रिप्टोएनालिसिस. तो हम सिंपल डेमो यूज करेंगे जिसमें आपको मजा आए. तो वी गो विद दिस वेबसाइट practicalcryptography.com. यहाँ पे मैं ये पीपीटी को स्टॉप कर रही हूँ और मैं ये यूआरएल को ओपन कर रही हूँ. प्रैक्टिकल क्रिप्टोग्राफी, इज इट विजिबल गाइस? मैम मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है. हेलो मैम एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट पूछ रहा है. हाँ मैम. हाँ मैम, एक बार चैट में लिखा है मैम. हाँ बोलिए. मैम देयर आर also some algorithms such as SHA 512. So which tools are used to analysis of this type of algorithms? देखो ये SHA हैश फंक्शनल एल्गोरिथम है, हैश एल्गोरिथम SHA. जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया ना, जो हमारे पासवर्ड्स होते हैं जीमेल के, वो हैश होके सेव होते हैं. तो वहां पे जो एल्गोरिथम यूज हुआ है हैशिंग के लिए वो SHA एल्गोरिथम है, एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम नहीं है. ऑफ कोर्स उनको ब्रेक करने के लिए भी, यू नो, with every organization, with every security system, there are their own softwares for breaking this, for making ciphers, for setting the processes. There are n number of tools available for this, n number of tools. तो जो आपका क्वेश्चन है SHA, वो हैश एल्गोरिथम है, वो एन्क्रिप्शन की तरह ही काम करता है, लेकिन उसका डिक्रिप्शन पॉसिबल नहीं होता, वो रिवर्स प्रोसेस नहीं करता है SHA एल्गोरिथम. उसके भी टूल्स होते हैं, हैश फंक्शन के भी टूल्स होते हैं. दिस ऑल कम्स अंडर क्रिप्टोग्राफी ओनली. तो हम हैशेस भी ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं उसके. तो ये हम एग्जांपल देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं जिसमें आपको मजा आएगा. साइफर्स में गए हम, यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे साइफर्स है. यू नो, इवन विथ एवरी साइफर देयर आर सो मेनी वर्जन्स अवेलेबल. जैसे कि सीजर साइफर का यहाँ पे अलग एक दूसरा ऊपर साइफर लिखा है ROT 13. बेसिकली वो सीजर साइफर का ही एक वर्जन है. जैसे सीजर साइफर में A को हम 0
अगर लेते हैं, ए को 0 से स्टार्ट करते हैं तो रॉट 13 में वो 1 से स्टार्ट होगा ए की वैल्यू, इस तरह से। तो फॉर एवरी साइफर देयर आर वेरियस वर्जन्स। तो हमें क्या करना है, अभी तक हमने 3 साइफर्स पढ़े हैं, सीजर साइफर पढ़ा है, एक सिंपल सबस्टिट्यूशन साइफर पढ़ा है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपको इसका सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन करेंगे। अब मान लो आपने लिखा है हैप्पी बर्थडे, अभी कोई तो शिफ्ट यूज करो, मान लो हमने 4 का शिफ्ट यूज किया, उसको एनक्रिप्ट करो तो हमें ये टेक्स्ट मिला। तो इस तरह से आप कुछ एक फन एक्टिविटी कर सकते हैं। आप अपना मेल जो नॉर्मल टेक्स्ट में टाइप करते हैं, वो आपको जो भी टेक्स्ट लिखनी है वह यहाँ पे आप कॉपी करो, उसको शिफ्ट अप्लाई करो, उसके एनक्रिप्ट करो, और वो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट आपके दोस्त को भेजो और बोलो उसको इसको क्रैक करे। आपको उसको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही इज अ बिगिनर, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने सीजर साइफर का यूज किया है। तो आपको उसको ये बताना पड़ेगा कि सीजर साइफर का यूज कर और ये वेबसाइट का यूज कर, या फिर तू ढूंढ वेबसाइट, ओके, और उसको ब्रेक करके मुझे बता कि मैंने क्या तुझे लिखकर भेजा। इस तरह से आप एक फन एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आपका दोस्त क्या करेगा, उसको ये मैसेज मिला है, ये वाला LETTC, तो वो क्या करेगा, क्रिप्ट एनालिसिस कैसे करेगा, ये वेबसाइट खोलेगा, यहाँ पे डालेगा और शिफ्ट अप्लाई करता जाएगा। मान लो वो ट्रायल एंड एरर कर रहा है 8 का 9 का, और वो डिक्रिप्ट करता जाएगा। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नेक्स्ट वाला शिफ्ट अप्लाई करते हैं, 10 का करते हैं, डिक्रिप्ट हो गया, ये भी नहीं समझा, ये किया, डिक्रिप्ट किया, ये भी नहीं समझा, अभी वो करते करते मान लो वो 4 पे आ गया, डिक्रिप्ट किया, तो उसको समझा कि आपने उसे क्या टेक्स्ट भेजी थी। दिस इज अ फन एक्टिविटी। तो ये हमारा सीजर का एग्जाम्पल हुआ। उसी तरह से हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन साइफर, इसको भी देखते हैं कैसे होता है ये सब्स्टिट्यूशन साइफर। मान लो हमने यहाँ पे लिखा हैप्पी बर्थडे। अब देखिए, जैसे मैंने बोला था कि हर एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस के लिए, मतलब एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस के लिए A to Z का जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस है उसको हमको एक रैंडम सीक्वेंस से मैप करना है। तो ये जो है ये रैंडम सीक्वेंस है 26 लेटर्स का। जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे 26 फैक्टोरियल सीक्वेंसेस हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखो सीक्वेंस से जनरेट हो रहा है, ये की जनरेट हो रही है। तो मान लो हमने कोई तो एक की यूज की, मान लो हमने ये की यूज की, तो क्या होगा, ये एन्क्रिप्शन कैसे होगा, देखिए हमने इसको एन्क्रिप्ट कर दिया तो हमें ये लेटर मिला। तो क्या होगा, ये जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस है ABCD, उसके अगेंस्ट ये वाला जो सीक्वेंस है BYDEOKS, ये मैप होगा। तो उस केस में A क्या बनेगा, A क्या बनेगा, A बनेगा B। आपको समझ रहा है क्या, A बनेगा B। देखिए ABCD अप टू Z हमारा स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, उसके साथ हमने ये की वाला सीक्वेंस मैच कर दिया, ओके। तो A बनेगा B, इसके ऊपर मान लो A लिखा है, A बनेगा B। अब हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है हैप्पी बर्थडे, इसमें A सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे A बन गया है B। ये समझा क्या आपको। फिर B बनेगा Y, तो देखिए B बनेगा Y, सेकंड लेटर हमारा साइफर टेक्स्ट लेटर में सेकंड लेटर जो है हमारा रैंडम की में वो है Y, जो कि B के साथ मैप होगा स्टैंडर्ड लेटर के साथ, तो B बनेगा Y। अभी हमारा जो हैप्पी बर्थडे है इसमें देखिए B Y बना है क्या, हाँ बना है, इस तरह से। तो इस तरह से हम कोई भी रैंडम की यूज करेंगे। अभी इसको तो अगर आपने सब्स्टिट्यूशन साइफर का यूज किया तो उसको बहुत मुश्किल जाएगा क्रैक करने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे रैंडम कीज उसको ट्राई करनी पड़ेगी, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। लकीली अगर मैच हो गया तो हो गया, अदरवाइज 26 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन उसको ट्राई करने पड़ेंगे इसको ब्रेक करने के लिए, ओके। तो अभी हमको की भी याद रखनी पड़ेगी, इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको अगर हमको डिक्रिप्ट करना है तो हमें ये की याद करनी पड़ेगी, तो वो डिक्रिप्ट होकर हमें प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। तीसरा हमने देखा था विजेंद्र साइफर, ये वाला साइफर। यहाँ पे भी हमने डाला हैप्पी बर्थडे,
कीवर्ड हमें याद रखना पड़ेगा। मान लो फूल, हमने ये फूल एक कीवर्ड यूज किया, इसको एन्क्रिप्ट किया, तो ये हमें साइफर टेक्स्ट लेटर मिला। तो ये इस तरह से इस तरह से हम एक फन पर्पस के लिए डेमो यूज कर सकते हैं एंड यू कैन प्ले विथ इट। तो so far in today's lecture we have seen symmetric key cryptography. In tomorrow's lecture we'll see asymmetric key cryptography जहाँ पे दो कीज यूज होती है, और इसका हम एक इंटरेस्टिंग डेमो देखेंगे कि दो कीज किस तरह से यूज की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेगनोग्राफी, एक और मजेदार टेक्निक हम देखेंगे जो आप फन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, वो हम कल देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है क्रिप्टोग्राफी में, ये सारा पढ़ के हमें कहाँ पे हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये हम कल देखेंगे। तो अभी आप मुझे बताइए कि इसमें आपको क्या पूछना है, आज के पोर्शन में आपको क्या पूछना है, आपकी क्या क्वेरीज है, बताइए। Yes, anybody? Monica, if you can see chat, there are two questions. Or should I read for you? Yes, ma'am. There are two questions in chat. Yes, Yeah. हाँ। Ma'am, you are not audible. Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. May I read question for you? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Question is: a man can spacebar used between plain text words can also be encrypted if we don't want intruder to know what is the real length of words in plain text. Plain text can also be encrypted if we don't want intruder to read the plain text. ये क्वेश्चन है। Can I see the question please? ये मुझे कहाँ पे मिलेगा? Ma'am, please see the chat box. Chat box, no? Okay. Chat box. If I am saying, see. Okay. Last में 3 dots होंगे. Okay. Yes, ma'am. Yes. Chat box. Yes. Okay. So I'm seeing the question. Okay, ma'am, can we create our own cryptographic algorithms? If yes, then how can we? Yes, definitely. See, ये जो jobs होते हैं, क्रिप्टोग्राफर के जॉब होते हैं, क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी पर्सनल, तो उनका काम यही होता है कि नए नए एल्गोरिथम्स डेवलप करें। तो उसके लिए you have to be, you can see there are so innovative techniques available that you cannot even imagine. जैसे आपने विजेंद्र के एग्जांपल देखा, आपने कभी सोचा था इस तरह से कोई कन्वर्जन हो सकता है? हमें सिंपल तो पता है, शिफ्ट साइफर, ये साइफर, लेकिन जैसे विजेंद्री है, प्ले फेयर साइफर है, ऐसे देयर आर इनोवेटिव टेक्निक्स व्हिच आर डिफिकल्ट इवन टू इमेजिन, डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो इसी तरह से इनोवेटिव एल्गोरिथम्स यू आर आस्क्ड टू डेवलप if you are a developer of this algorithm, of this system. If you are a developer, you are asked to develop such algorithms. ये तो जॉब प्रोफाइल ही होता है, डेवलप करना नए नए सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स। Yes, so we can create our own cryptography algorithm. How can we then you should have some innovative logic in mind, some innovative जो कि existing नहीं है, या फिर existing भी आप किसी लॉजिक का यूज करके उसको अल्टर करके आप कर सकते हो। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे क्या क्या साइफर्स है, क्या क्या लॉजिक्स अवेलेबल है जो एन्क्रिप्शन के लिए यूज होते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी थरो विद द नॉलेज ऑफ cryptographic ciphers. Once you are ready with it, once you are done with it, then you can try out your
ओन न्यू लॉजिक, न्यू एल्गोरिदम, उसको आप प्रोग्राम करो जावा से, C++ से उसको प्रोग्राम करो, तो आपको नया आपका प्रोग्राम बन जाएगा. So this was asked by Ayush Malviya. I hope you understood. Second question hash वाला हो गया है. Anybody else? Ma'am, can cyberspace be used? No, I'm not understanding. Ma'am, can space bar used between plain text words also be encrypted? अच्छा, हाँ. If we don't want the intruder to know what is the real length of the words in plain text, हाँ. अभी देखिए, जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं ना, जैसे हमने हैप्पी बर्थडे लिखा, तो हैप्पी बर्थडे में जो स्पेस है, बेसिकली दिस स्पेशल, ये स्पेसेस वो कंसिडर नहीं होते हैं. डायरेक्ट लेटर टू लेटर मैपिंग होती है, स्पेसेस कंसिडर नहीं होते हैं. अगर हमारे प्लेन टेक्स्ट में हमने स्पेसेस दिए हैं, तो वो स्पेसेस रिमूव होके प्रोग्रामिंग होती है. अगर आपने वो टूल देखा होगा, तो उसपे वो टूल में even if you are mentioning spaces in the plain text, वहां पे एक टिक करने के लिए ऑप्शन रहता है कि आप रिमूव स्पेसेस, तो स्पेसेस रिमूव करके आपको साइफर टेक्स्ट मिलेगी. ठीक है, तो साइफर टेक्स्ट मतलब मुझे ये बोलना है कि स्पेसेस प्रोग्रामिंग में यूज नहीं होता है, स्पेस को कन्वर्जन नहीं होता है, लेटर टू लेटर मैपिंग होती है. ये समझा क्या आपको? स्पेस बार का कन्वर्जन नहीं होता है, लेटर टू लेटर मैपिंग होती है. ओके, तो मैं आपको ये बोल रही थी कि अगर जैसे हमने टूल यूज किया है ना, तो वहां पे अगर हम हैप्पी स्पेस बर्थडे लिखते हैं, तो वहां पे ऑप्शन होता है कि आइदर यू गेट द साइफर टेक्स्ट इंक्लूडिंग स्पेस बार और एक्सक्लूडिंग स्पेस बार. बट हमने टिक करने से वो उसका जो साइफर टेक्स्ट वर्जन है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में साइफर टेक्स्ट कन्वर्जन में स्पेस बार का यूज नहीं हुआ है, लेटर टू लेटर मैपिंग हुई है. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? और कुछ क्वेश्चंस किसी को पूछना है? Any students having any doubts? आप ये जो ऑनलाइन टूल है एक बार ट्राई कीजिए. you will find it funny, you will find it interesting. You send encrypted messages to your friend and explain him how to decrypt them and try whether and see whether he is able to decrypt them or not. अच्छा, मैम, hash functions use one way encryption, so can we decrypt it by the way it encrypted? देखो, यस, देखो इसका क्या होता है, हमने मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 172 यूज करके हमें 10 मिला, तो 10 का हमें ओरिजिनल वैल्यूज हमको मिलेंगे, बट उसको डिक्रिप्शन नहीं बोलते हैं, इट इज लाइक अनहैशिंग इट. तो वैसे ही उसको हम रिट्राइव बैक कर सकते हैं, बट as such using one key encryption process and using another key decryption process हैश में फॉलो नहीं होता है, वो वन वे एन्क्रिप्शन होता है. ओके, जैसे मान लो 172, इसको अगर हमको डिक्रिप्ट करना है, तो 172 का 3 लेटर्स में वैल्यू बनेगा. मान लो 10, 12, 11, ये उसका डिक्रिप्टेड वैल्यू मिल रहा है सम की यूज करके. तो जब हम उसको डिक्रिप्ट करेंगे तो हमें 172 वापस मिलेगा. हैश में एज सच डिक्रिप्शन वर्ड यूज नहीं होता है. हैश में क्या होता है, ये जो हमें एक क्यूमुलेटिव वैल्यू मिली है, एक कंपाइल्ड वैल्यू मिली है, उसको हम सेपरेट कर रहे हैं इनटू इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर्स. तो ऑफ कोर्स उसका भी अनहैशिंग होता है, उसके लिए भी टूल्स अवेलेबल होते हैं जो अनहैश करते हैं. ओके, बट अगेन hashing and its reverse process is again difficult to break, but there are tools available to break it. Okay,
नॉर्मली क्या होता है, हैश कैसे होता है कि मान लो एक लंबा टेक्स्ट है, उसका छोटा टेक्स्ट में कन्वर्जन, तो जब उसको रिवर्स बैक करना है तो उसको फिर से उसके इंडिविजुअल लेटर्स में वो अनहैश हो जाता है. सो दिस इज द अनहैशिंग प्रोसेस. ओके गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? आप हेलो, जीमेल के हमारे जो भी पासवर्ड्स होते हैं वो सारे हैश वैल्यूज में स्टोर होते हैं. हैश वैल्यूज. स्टेगनोग्राफी के बारे में हम कल बात करेंगे, जहां पे हम इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल कर सकते हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ यूज कर सकते हैं. ये वाला भी आप प्रैक्टिकल अपने दोस्तों के साथ यूज करें. व्हाट एल्स गाइस? एनी मोर क्वेश्चंस? Any other question, guys? Should I end this, madam? Okay, ma'am. Just we'll go with the last question. Ma'am, Yes, ma'am. Ma'am, there is no loss of data when it shorten the length. No, absolutely not. Absolutely not. Absolutely not. There is no, there is no question of shortening the value. If there was data loss, then this would have never came into picture. Length short होना इसका मतलब डेटा लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता है. हैशेस की वैल्यूज लंबी भी होती है. देयर आर वेरी लॉन्ग हैशेस आल्सो. तो इसका लेंथ से एक्चुअल डेटा का लॉस इसमें नहीं होता है. नो मैटर व्हाट एल्गोरिथम यू यूज, देयर इज नो डेटा लॉस. व्हाट एल्स गाइस? मोर क्वेश्चंस? Okay, I think there is one more message. तो गाइस हम कल देखेंगे स्टेगनोग्राफी, और उसके पहले हम ये देखेंगे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, जहां पे हम 2 कीज का यूज करेंगे और वहां पे हम डेमो करेंगे. अभी तक जो हमने देखा वो एक ही की का यूज हुआ था. कल हम देखेंगे कि 2 कीज का यूज करके हम इसको एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं, और हम देखेंगे स्टेगनोग्राफी का यूज क्या होता है. ओके गाइस, सी यू टुमारो. Okay, ma'am, Monica ma'am. So thank you very much for Thank you today's very much, session. ma'am. Thank you very much, and we'll meet tomorrow at 2 p.m. again. Tomorrow at 2 p.m. guys. Yeah. Have a good day. Thank you very much. Have a good day, ma'am. All Have a good students, have a good day. Thank you, ma'am.